हेलो दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੁਕੀਜਾ ट्यूशन्स एंड माय नेम इज़ तमन्ना। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 6th 7th 8th ਔਰ 9th ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ 22 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਫਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰॉकेट्स। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। थर्ड फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ DPSP। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिफ्थ द यूनियन पार्ट। सिक्स द स्टेट्स। सैवंथ पार्ट अपने कोल है नहीं क्योंकि उन्हें स्टेट नू डिफरेंट टाइप्स दे विच वंडिया सी। एट्थ च यूनियन टैरेटरीज हो गया। 9 दे विच की हो गया पंचायत्स। M दे विच म्यूनसिपैलिटीज़। C कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। S शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। R ते की हो गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, नैक्सट अगे 12 to 15 याद करने की ट्रिक है, फॉरन टूर साउंड्स टू एक्सपेंसिव। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट पार्ट्स। टी ते ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एस ते की हो गया सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट लाइक UPSC SPSC IPSC सर्विसेज या PPSC सर्विसेज। 14A दे विच की है ट्राइब्यूनल्स और 15 दे विच की है इलैक्शंस। ठीक है, नैक्सट की है 16 to 22 शी ऑन्स एक्सपेंसिव मैट्स। एस ते की हो गया स्पेशल प्रोविजनस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। और ते ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ई ते एमरजेंसी प्रोविजन। एम ते मिसलेनियस पार्ट। ए ते अमेंडमेंट्स। टी ते टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजनस। एस ते की हो गया शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ठीक है, ये अपने कोल की हो गए 22 पार्ट हो गए। ਆਪਾਂ पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया सी ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ यूनियन एंड इट्स टैरिटरीज। किन्ने आर्टिकल ਦੇ अंडर सी आर्टिकल 1 2 3 4। ठीक है, आर्टिकल 1 2 3 4 है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾर्ट 2 ਸੀਗਾ आर्टिकल 5 to 11 ਦੇ अंडर सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। ठीक है, ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫੋਰਨਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਨ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, HMC पूछ कुछ कि HMC तो पूछो कुछ। ठीक है, H ते की हो गया हैबियस कॉर्पस। ठीक है, M ते की हो गया मैंडेमस। C ते की हो गया सैरिटोरियल। P ते प्रोहिबिशन। कुछ ते की हो गया क्यू वरंटो। कि आपने कोले 5 तरह दियाँ रिट्स ने। ठीक है, इन्ना ही तुसीं याद रखना किहड़ियां 5 रिट्स ने, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਰਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਨ ਕਮਾਂਡਸ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, HMC से पूछ कुछ। ठीक है, समझ आई। नैक्सट ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾर्ट 4 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 36 to 51 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। DPSP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ DPSP ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਵਲ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DPSP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਵਲ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ DPSP ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਪਲੱਸ FR ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਬੋਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਨੋਵਲ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ। DPSP ਪਲੱਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ।
ठीक है। इनू होर की कहा जाता है, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5th पॉइंट की है, एम्स दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव। और थर्ड की 7th की है, सिस्टर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इनू की कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स की भैन भी या भैन भी कहा जाता है। और इनू ओनली इंस्ट्रक्शंस भी की है कहा जाता है। की कहते हैं कि DPSP नू बोरो कित्थों कीता है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन तो। इनू नोवल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम किन्ने दिता है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने। DPSP प्लस फंडामेंटल राइट्स जो मिलते हैं तो उन्होंने की नाम दिता गया, फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या जाता है, एम्स दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव, या सिस्टर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी क्या जाता है। और ओनली इंस्ट्रक्शंस भी DPSP की है क्या जाता है। ठीक है। नैक्सट की है, जिमें DSP नू 3 डिफरेंट पार्ट्स च वंडिया है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटलैक्चुअल प्रिंसिपल। की हुंदा है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की हुंदा है कि ऑल इक्वल इन सोसाइटी, कि हर कोई सोसाइटी की नज़र च की है इक्वल है। नो वन इज़ रिच एंड नो वन इज़ पुअर, कोई भी गरीब या अमीर नहीं है, कोई भी आपदे रैंक के मुताबिक अमीर गरीब नहीं होएगा। सोसाइटी दे विच सारे की ने इक्वल ने, जिवें की है ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल की है कि लड़ाई नहीं करनी, विश्व में पूरा प्यार रूप बनाना है, कि कोई भी लड़ाई नहीं करनी, सारे ने आपस दे विच की है प्यार नाल रहना है। ठीक है। लिबरल इंटलैक्चुअल प्रिंसिपल की है, उदारवादी बनना है तो दिमाग तो काम लेना है। 3 टाइप्स ने, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटलैक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है। और फर्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की है, ऑल इक्वल इन सोसाइटी। गांधीयन च की है, लड़ाई नहीं करनी, विश्व में प्यार रूप बनाना है। लिबरल इंटलैक्चुअल की है, उदारवादी बनना है तो दिमाग तो काम लेना है। ठीक है। ठीक है। नैक्सट की ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जड़ियाँ वो की ने आर्टिकल 51A दे विच आंदियां ने। ठीक है। पहला आपां की कीतियां ने, DPSP कीतियां ने। ठीक है। डायरैक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिहदे च की सारे उन्होंने की किया जाता है, सारी डिफाइन कर लिया आपां, 3 पार्ट्स च डिवाइड किया है। सबजैक्ट्स ने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल ते लिबरल इंटलैक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है। नैक्सट हुण अपने कोल की ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई ने। ठीक है। जेडे DPSP ने वो आर्टिकल दे केड़े अंडर आते हैं, आर्टिकल 36 टू 51 दे अंडर आते हैं। ठीक है। हुण नैक्सट की है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिन्हां दा आर्टिकल की है आर्टिकल 15A, किहदे च आंदे ने पार्ट 4A दे विच। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हुंदियां ने, दीज आर आर ड्यूटीज़ टुवार्ड आर कंट्री, कि अपनी कंट्री दे टुवार्ड्स की अपनियां की ड्यूटीज़ ने, जिन्हों आप अडॉप्ट कित्थों कीता, USSR कॉन्स्टिट्यूशन तो, मतलब रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़ के ग्रुप तो की है आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ने अडॉप्ट कीतियां ने। ठीक है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, की कहते हैं कि जिहड़ा अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उनदे विच की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ने जिहड़ियां विच नहीं ने। ठीक है। 4th की है, एक कदों एडिड होईयां ने, जदों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई सी 42 1976 दे विच, किहदे रिकमेंडेशन च स्वर्ण सिंह कमेटी दे रिकमेंडेशन विच की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी उदों की है ऐड होईयां सी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दे द्वारा। ठीक है। पर हुण किन्नियां ने 11। 42 अमेंडमेंट जदों होई सी उदों अपने कोल 10 सी, पर जदों हुण 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होया है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट होया ने, अमेंडमेंट्स होईयां ने, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है कदों 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। नैक्सट की कहते हैं, टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सिटीजन बाय जस्टिस वर्मा कमेटी, कि एक किहदे द्वारा टीच कीतियां जांदियां ने, जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 दे द्वारा। और ये रिपोर्ट किन्ने सबमिट कदों सबमिट हुई सी 2000 दे विच। की कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A दे विच ने, आर्टिकल 4A दे अंडर इनू की कहा जाता है, दीज आर आर ड्यूटीज़ टुवार्ड्स आर कंट्री। USSR कॉन्स्टिट्यूशन तो लईयां गया ने, जिंदे च रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़ ने। ठीक है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ने जिहड़ियां कंटेन नहीं है। ठीक है। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 विच रिकमेंडेशन किंदी स्वर्ण सिंह कमेटी दी उदों ऐड किया गया सी।
10 फंडामेंटल ड्यूटीज सी, हुण 11 ने। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कदों ऐड हुई सी? जदों 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई सी, कदों? 2002 दे विच। ठीक है, ये अपने कोल फंडामेंटल ड्यूटी सी। हुण नैक्सट आप अगे की करांगे DPSP आर्टिकल्स कि DPSP दे विच अंडर किहड़े आर्टिकल्स आंदे ने। फस्ट अपने कोल की है आर्टिकल 38, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? सोशल ऑर्डर आंदा है। सोशल ऑर्डर का मतलब की है? वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स कि किसी का आपां की है वेलफेयर किवें करना है। ठीक है, नैक्सट आ गया अपने कोल आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 दे विच की आंदा है ABCDE 5 टाइप्स हुंदियां ने, जिहदे च की कहंदे ने एडिकुएट मीनस ऑफ लाइवलीहुड। बीच की आ गया प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल सोर्स। C ਤੇ प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सनट्रेशन ऑफ वेल्थ। D ਤੇ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। E ਤੇ की है हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, एज या स्ट्रेंथ। फस्ट है एडुकेट मीनस ऑफ लाइवलीहुड कि सब नूं जीण दा ढंग आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, B ਤੇ की आ गया प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्स कि मटीरियल रिसोर्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। ठीक है, C च की आ गया प्रिवेंशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ कि पूरा कंसनट्रेशन रखना चाहिए वेल्थ पे। और डी ऑप्शन है इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क कि चाहे वो मैन है चाहे वूमैन है, अगर वो दोनों काम करते हैं तो दोनों को इक्वल पे ही मिलनी चाहिए है। ठीक है, ई तो की हो गया हेल्थ ऑफ द वर्कर्स लाइक एज और स्ट्रेंथ, अगर किसी की ज़्यादा एज है तो उन्होंने उस हिसाब से काम मिलना चाहिए है। अगर ओबीयस जी गल है जिहड़े जवान होणगे जिन्हां दी एज घट होएगी उन्हां कोल काम आपे ज़्यादा होएगा, तां करके की है डिपेंड ऑन हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, दैन आर्टिकल 40 की कहता है अपने कोल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत कि विलेज पंचायत की है ऑर्गेनाइज कीतियां जान। ठीक है, आर्टिकल 41 की कहता है अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और एक ही चाहता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन दे विच की है आर्टिकल 41 के अंडर की आंदा है अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस। आर्टिकल 42 दे विच की आंदा है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। आर्टिकल 43 दे विच की आंदा है कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 44 दे विच की आंदा यूनीफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 दे विच की आंदा फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, मतलब 14 सालों तो जिन्ने नीचे ने उन्हां वास्ते की है फ्री कंपलसरी एजुकेशन की है प्रोवाइड कीती है और ज़रूरी है। ठीक है, आर्टिकल 46 दे विच की आंदा है प्रमोट एजुकेशनल एंड इकनॉमिक इंटरस्ट ऑफ SC एंड STs। आर्टिकल 47 की हुंदा है प्रोहिबिशंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, आर्टिकल 48 दे विच की है प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज काल्व्स कि काउज का जिन्होंने मतलब गावां नूं मारिया जाता उन्हां दी रिस्पैक्ट नहीं की जाती, वो प्रोहिबिट किया जाए। आर्टिकल 49 की है प्रोटैक्ट ऑल मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरस्ट। आर्टिकल 50 दे विच की है सैपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 दे की है प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस की कहते हैं आर्टिकल 38 दे विच सोशल ऑर्डर होना चाहिए जिहदे च की आ जाएगा वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब की है वेलफेयर टू द सोसाइटी, वेलफेयर टू द पीपल, वेलफेयर टू द स्टेट कि किसी का वेलफेयर किवें करना है। ठीक है, आर्टिकल 39 दे विच 5 आ जांदियां ने टाइप्स ABCDE। ए की है एडुकेट मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड। B ते प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्स। C ते प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सनट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, D ते इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क। E ते हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। 40 की है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो। 41 की सी अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, ए राइट टू वर्क या एजुकेशन अपने आर्टिकल चाहती है। आर्टिकल 42 की सी ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। 43 की सी कॉटेज इंडस्ट्रीज। 44 यूनीफॉर्म सिविल कोड। 45 फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। 46 दे विच की सी प्रमोट एजुकेशनल एंड इकनॉमिक इंटरस्ट ऑफ SC एंड STs। 47 दे विच प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। 48 दे विच प्रोहिबिशन द स्लॉटर ऑफ काउज काल्व्स। 49 दे विच प्रोटेक्ट ऑल मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरस्ट। 50 विच की सी सैपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 51 दे की सी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। दो बारी एक्सप्लेन की मैं तुहानूं की है कि जिहड़ियां अपने कोल DPSP आर्टिकल्स ने आर्टिकल 38 तो लैके 51 तक, ठीक है, उहदे च की है इन्ने सारे आर्टिकल्स आंदे ने जिन्होंने मैं 2 बारी एक्सप्लेन किया है। ये सारियां अपने कोल की ने DPSP के आर्टिकल्स ने 38 टू लैके 51 तक। ठीक है, इत्थे आपने की 4 अपने पार्ट्स पूरे होंदे ने। हुण अपना 5th पार्ट है जिहदे च की है यूनियन
यूनियन का मतलब की हुंदा है सेंटर, ठीक है। जिहदे च की आ जाएगा प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स, MPs, गवर्नर ते CM, ठीक है। ये अपने कोल की आ जाएंगे सेंटर दे विच आ जाएंगे, ठीक है। नैक्सट अगे आपां की करांगे आर्टिकल 52 आपां नूं की दसदा है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेजिडेंट बारे दसदा है। आर्टिकल 53 दे विच की हुंदा एग्जैक्टिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 च की हुंदा इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। 55 दे विच की हुंदा मैनर ऑफ द इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। 56 दे विच की हुंदा टर्म ऑफ ऑफिस। 57 दे विच एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री इलैक्शन। 58 दे विच क्वालिफिकेशन। 59 दे विच कंडीशनस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 दे विच ओथ हुंदी है, ठीक है। 61 दे विच की हुंदा प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट। 62 दे विच की हुंदा टाइम ऑफ होल्डिंग इलैक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट। की कहंदे ने कि आर्टिकल 52 दे विच की हुंदा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बारे दसदे ने। 53 दे विच एग्जैक्टिव पावर ऑफ यूनियन। 54 दे विच की हुंदा प्रेजिडेंट दा इलैक्शन किवें होना है ਉਹਦੇ बारे दसिया। 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਉਹਦਾ किस तरह ਦਾ बिहेव होना चाहिए। 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिस बारे दसिया प्रेजिडेंट ਦੀ। 57 ਦੇ ਵਿੱਚ दसिया कि एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री इलैक्शन की एलिजिबिलिटी री इलैक्शन ਦੀ ਕੀ है। 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ क्वालिफिकेशन कि प्रेजिडेंट ਦੀ ਕੀ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है। 59 ਦੇ ਵਿੱਚ कंडीशनस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफिस कि प्रेजिडेंट ਦੀਆਂ कंडीशनस ਕੀ ਨੇ। आर्टिकल 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ओथ है, शपथ है ਉਹਦੀ। 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫਿਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਇਨ ਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਨ, ਪ੍ਰੋਗੋਗ ਔਰ ਡਿਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਆਫ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਔਰ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ ਸਮਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਸੀ, ਡਿਸੋਲਵ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਆਫ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। थर्ड च एड्रैस द पार्लीमेंट आ जाता है। फोर्थ च नॉमीनेशन आ जाती है। फिफ्थ दे विच की आ जाता डिसक्वालीफिकेशनस ऑफ MPs, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट्स की डिसक्वालीफिकेशनस। सी ते की है सिक्स ते की है प्रोमुलेट ऑर्डीनेंस। सैवन च की आ जाता बिल्स कंसेंट। 8 च की आ जाता है अपॉइंट एनी मैंबर। प्रेजिडेंट की लैजिसलेटिव पावर च की आ जाता है फस्ट च डिजोल्व आ जाता है कि किवें सैशन नूं डिजोल्व करना है, समन करना है। आर्टिकल 108 च की आ जाता जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसिस ऑफ पार्लीमेंट। थर्ड ते एड्रैस द पार्लीमेंट। फोर्थ च नॉमीनेशन आ जाती है। फिफ्थ च डिसक्वालीफिकेशन ऑफ MPs आ जांदियां ने। सिक्स च प्रोमुलगेट ऑर्डीनेंसिस आ जाते हैं। सैवन च बिल्स आ जाते हैं और 8 च की आ जाते हैं अपॉइंट्स आ जाते हैं कि किहड़े मैंबर नूं अपॉइंट्स करना है किवें, ठीक है। नैक्सट की आ गया अपने कोल फाइनैंशियल बिल। फाइनैंशियल बिल की दसदे ने फाइनैंशियल पावर की आ जाते हैं। फस्ट आ जाती है अपने को मनी बिल। सैकेंड नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड। थर्ड एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट बजट जोड़ा आर्टिकल 112 के अंडर आता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच बजट नाम का कोई सिंगल वर्ड भी नहीं है। बजट सिर्फ अपना बनाया वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की लिखा होया है एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट, केड़े आर्टिकल आर्टिकल 112, ठीक है। फोर्थ की है कैन मेक एडवांस आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कि जेड़ा कॉन्टीजेंसी फंड हुंदा इंडिया का वो फाइनैंशियल पावर च दसिया प्रेजिडेंट की। और लास्ट की है कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी ईयर्स, कि हर साल बाद की है कॉन्स्टिट्यूट करना फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये दो अपने कोल पावर सीगियां। पावर ऑफ प्रेजिडेंट दी आपां दो पावर्स कीतियां ने, लैजिसलेटिव पावर्स और फाइनैंशियल पावर। उपर इस तो आपां की कीता है प्रेजिडेंट दे आर्टिकल्स पढ़े ने 5th पार्ट दे विच आर्टिकल 52 to 62 तक लैके। और अज आपां आपदा 4th और 5th पार्ट कवर कीते ने, ठीक है। नैक्सट क्लास दे विच अपनी हिस्टरी दी क्लास है। हिस्टरी दे आपां अगे जिहड़े अपना चल रहे ने MCQs ओह कंटिन्यू करांगे।
ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ 5th ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।